I'm inside that virtual machine, guys, and I'm trying to use google.com, which means I'm trying to use internet. Not only Google, we can try any site. MSN default है उसका, let's say वो apply हुआ या नहीं अब तक. So are we able to use internet, guys? No. No. Are we missing on something? Right. Right, guys, so we are unable to access internet. I am able to see inbound internet blocking option. What does it do? That will happen when you use your server to host a website. Like my server has a website which is working on internet, which is working on internet with a public IP. Then your server is also a part of internet. That time you can use that. The other server which I have shown you to guys, जहां पर वो मेरा website hosted है. Yes, RDP will definitely work. RDP will work and your internet traffic will not work. ठीक है? If you want to see, we can, and this is in front of you. We have taken RDP. इसका मतलब है कि RDP चल रहा है. Remote लेकर हम इस machine पे बैठे हैं and यहाँ पर internet नहीं चल रहा. So same thing will happen in inbound also. ठीक है, guys? Is it clear till here? Yes. Now, Yes. who can help me to get the internet back? I want the internet back on this machine. And just don't delete it. Delete करना बहुत simple task है. I mean, simplest way is I will delete this role, right? But other than deleting, how can you get the internet? Disassociate, yes, I can do that, but that is not serving my purpose. What about the other rules? I just want internet to be back. That does not mean I will deassociate my nick. Not using this example, sorry, my bad. If you're considering this example, yes, कहाँ चला गया वो paint वाला? If this example, yes, I'll simply disassociate this और डायरेक्ट यहाँ से ट्रैफिक. The actual example I'm talking about, जिस मशीन पे मैं हूँ, इसमें एक ही निक है, इसको मैं डिसएसोसिएट कर दूंगा अगर, तो इंटरनेट तो चलने लग जाएगा, बट साथ में ये जो रूल्स है ये भी चले जाएंगे. मतलब फ्री हो जाएगी मशीन, कुछ भी ब्लॉक नहीं कर रहा है. So simple, we'll create another rule to allow internet, right? But guys, नॉर्मली ऐसा होता नहीं. आपके पास सामने यहाँ पर एक रूल है ऑलरेडी जो इंटरनेट को अलाउ कर रहा है, एक है जो ब्लॉक कर रहा है, तो आप इससे एक लेस प्रायोरिटी वाला क्यों बनाओगे? बेवकूफी है वो, राइट? ये सिंपली डिलीट दिस और अपने आप ये पिक्चर में आ जाएगा. एंड इफ दिस वाजंट अ डिफॉल्ट वन, देन यू कैन सिंपली गो अहेड एंड डिक्रीज द प्रायोरिटी नंबर, उससे भी आपका काम हो जाएगा. बट फॉर प्रैक्टिस नाउ आई वांट यू गाइस टू गाइड मी हाउ टू क्रिएट अ रोल जिससे मेरा इंटरनेट फिर से चलने लग जाए. Looking at this scenario, or if any one of you would like to volunteer, you can go ahead and create do this. I'll give you the access on this resource group, or I can give you access on my screen, or you can guide me, navigate me, and I'll do that, whatever suits you. But unless you guys practice, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा. So don't run from practice. गलत है, सही है, doesn't matter. Yes, guys. Who would like to try? Henty, Jafar bhai. Who's from Nikhat side? Is it you, Akib bhai? Yeah, it's my sister's name.
Okay, Yeah. so would you like to try, or Yogesh? Yeah, I'm from mobile. Yeah. So That's okay, you cannot can navigate. try. I'll do it I for can you. I can guide you. Yeah, Yes, same please. here. So we'll create a new rule. Okay, inbound, outbound, where do you want to create a rule? You got my Outbound. scenario, right? Yes, you It want to is there, allow internet. right? Yes. So you Go to want me to go to outbound. outbound? Okay, Yes. Mm, uh, add outbound port rule. okay, Uh, close any okay. this. Um, no. Yes. What about source port range? That can be star. Okay, which also means any. ठीक है, यहाँ Any. पर दिख रहा है Yes. port. And और let me try 443. देखते हैं यहाँ पर 443 दिखेगा क्या? Destination. destination you can select as internet service tag. Service tag and then internet. Okay. Yes. इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा आपको कि ये सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट अलग अलग नंबर क्यों आ रहा है एंड कैन वी हैव देम डिफरेंटली. विल डू दैट, बट एज ऑफ नाउ जितना हम लोगों ने डिस्कस किया उस पे व्हाट शुड बी द डेस्टिनेशन पोर्ट. ऊपर भी सपोज स्टार ही होता, ठीक है. 443 मैंने ऐसे एक एग्जांपल के लिए लिखा है. आई विल हेल्प यू विद दैट कि क्यों लिखा है 443. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर टू प्रैक्टिकल्स एट अ टाइम. आई होप दैट वर्क्स. ठीक है, सोर्स में भी आएगा यहाँ पर, डेस्टिनेशन में विल टाइप 443. प्रोटोकॉल एनी टीसीपी यूडीपी एंड आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स क्या है, यू गाइस कैन गो थ्रू इट वंस. वैसे हमने इसको पिछले इसमें कवर किया है. विल आई कीप अलाउ और डिनाई? एक्शन शुड बी Allow. अलाउ. प्रायोरिटी. Priority should be less than 200. ओके, कैन आई कीप इट 50? Yes. 50. No. No, 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 not 50. Right. Sorry. Above 100. So let's go You with can take 100. it 150. Right. And internet allow Allow. new. Yes. So Let that rule. instead of creating new rule, can we modify existing rule? Yes, we could do that also. I told you, and forget modifying. You can simply delete वो जो 200 वाला है ना, जो इंटरनेट को ब्लॉक कर रहा है, आप उसको डिलीट कर दोगे तो नीचे एक एग्जिस्टिंग रूल ऑलरेडी है जो इंटरनेट को अलाउ कर रहा है. 65001 जो है वो ऑलरेडी इंटरनेट को अलाउ कर रहा है, राइट. तो बेस्ट वे यही होगा कि आप वो 200 वाले को डिलीट ही कर दोगे. बट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस आई सेड कि हम यहाँ पर एक नया रूल बनाकर देखेंगे. अदरवाइज yes, you can modify that rule also. Simply you can go ahead and yes, that would have been an option, but हम उसको फिर भी नहीं लेते थे because we have to practice नया rule create करना. But yes, that will definitely work. उसमें बस आपको जाकर क्या करना है, simply same उस rule को ये करना है और उस deny को you just have to double click. उस deny को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर allow करना है and you have to save it. That's all. ठीक है. So internet allow rule आ गया यहाँ पर. I hope it works. Now let's see if it works. वैसे it takes time 2 to 3 minutes. सारे पोर्ट्स वगैरह सिंक होने के लिए, सबनेट लेवल पे, निक लेवल पे, ये सब होने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं काफी टाइम हद तक.
बट स्टिल विल सी चल रहा है या नहीं. 3 minutes a larger window, right? I mean, if we are in production, for example, Sorry, 3 minute is a larger window. I mean to say, like, if you're doing any changes, if you're in production Mhm. environment and you want to do quick, give quick access to internet. So, is it the Azure which takes this much time, or it's standard rule that it will take 3 minutes only, or नहीं नहीं, if we have डेफिनेटली a हाँ 3 से ज्यादा ही लेगा. तो वो लेता ही है उतना टाइम. रहता ही है. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मतलब ऐसा कभी आता नहीं है ना कि आप लोगों को इंटरनेट एक्सेस बंद कर रखा हो जहां पर सडनली चाहिए हो. और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इस तरह का पोर्ट ओपन करना डायरेक्टली कभी विदाउट चेंज होगा ही, विदाउट डाउन टाइम होगा ही नहीं. दो इसमें कंप्यूटर रिबूट इज नॉट रिक्वायर्ड. Okay. कंप्यूटर रिबूट इज नॉट रिक्वायर्ड. स्टिल इस तरह का काम जहां पर भी मतलब इंटरनेट पोर्ट ओपन करना एक प्रोडक्शन सर्वर पे इज अ बिग टास्क. उसके लिए कितने सारे चेंजेस लगेंगे, कितने सारे अप्रूवल्स ये होंगे. Approvals. हाँ, वो सब होने के बाद एक चेंज बुक होगा. एंड इफ देयर इज अ चेंज बुकिंग, डेफिनेटली देयर इज अ डाउन टाइम. सर्वर का बैकअप लिया जाएगा, पूरा का पूरा कॉपी बैकअप किया जाएगा कि इन केस पोर्ट ओपन करते ही कुछ गड़बड़ हो गई तो वी शुड हैव दैट फैसिलिटी टू रोल बैक. Backup plan. ठीक है. हाँ, कि रोल बैक करके हम एटलीस्ट जैसा था उसको वैसा दे सके. कर सकते हैं. तो एक 1.5 घंटे का डाउन टाइम तो पक्का होगा. अगर प्रोडक्शन सर्वर पे ऐसे कुछ कर रहे हो तो उसमें ये 3 मिनट अफोर्डेबल है आपके पास. Minimum 1 hour. It must be 3 मिनिमम to 1 4 आवर तो hours. होगा ही. Yeah. मैं स्पेशली विंडोज सर्वर है, ये करने के बाद कुछ हमको रिबूट करना पड़ गया, कुछ करना पड़ गया, यू नेवर नो. ठीक है, सो इट इज नॉट वर्किंग गाइस. आई विल हैव टू चेक फर्स्ट कि उसको मुझको. हाँ, बाय द वे इफ यू सी यहाँ पर 443 इस तरह से दिखेगा. ठीक है, यहाँ पर NA दिख रहा है, मतलब क्या है, वो पोर्ट वाले नंबर पे स्टार लिखा है. अगर कोई ये होगा स्टार नहीं या कोई नंबर लिखा होगा तो यहाँ पर दिखेंगे आपको. ठीक है. Usually when we get service now request, we directly do it or take permission first. ये थोड़ा सा ITIL का concept है हंटी. I am not sure how many of you are aware of this and today we have less people to explain this. इसको मैं कवर कर लूंगा बाद में जब हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं कि आप काम क्या करते थे, वो कैसे एक्सप्लेन करना है. बट जस्ट क्विक ब्रीफ जब तक वो रिफ्रेश हो रहा है. सर्विस रिक्वेस्ट आप लोगों को नहीं आएगी. ठीक है, सर्विस नाउ में मतलब ये ITIL का फंडा है. थोड़ा बहुत गूगल कर लो इसको तो दिख जाएगा. देयर इज अ सर्विस रिक्वेस्ट, देयर इज एन इंसिडेंट, देयर इज अ चेंज. तो इस वाले केस में सर्विस रिक्वेस्ट नहीं होगा, चेंज आपको आएगा. राइट, तो चेंज आएगा तो वैसे ही डायरेक्टली कुछ नहीं होता है. इफ देयर इज अ चेंज रिक्वेस्ट, दे आल्सो कॉल इट CR. चेंज रिक्वेस्ट अगर आता है आपके पास तो चेंज रिक्वेस्ट बुक होते ही 1 हफ्ता लगता है. किसी ने उसको पहले बुक किया होगा, उसके बाद एक चेंज मीटिंग होती है, देन एक कैब होता है, चेंज एडवाइजरी बोर्ड, उसमें एक चेंज एडवाइजरी मैनेजर होता है, वो उसको अप्रूव करता है. देन टाइम डिसाइडेड होता है कि संडे 2 PM IST से लेके 3 PM संडे 3 PM IST तक का हम डाउन टाइम दे रहे हैं. तो डायरेक्टली कुछ नहीं होता है. और उसमें मल्टीपल टीम्स होती है, उस चेंज के अंदर मल्टीपल टास्क हो गए. जैसे ये सर्वर अगर मॉनिटरिंग के अंदर है तो एक मॉनिटरिंग टीम के लिए एक टास्क होगा कि वी आर अबाउट टू शट डाउन दिस सर्वर, प्लीज टेक इट ऑफ फ्रॉम टेक इट ऑफ फ्रॉम मॉनिटरिंग, ताकि अननेसेसरी के अलर्ट्स ना जनरेट हो. जैसे ही सर्वर डाउन होता है ना तो अलर्ट जनरेट होता है कि सर्वर डाउन है. तो अगर हम मॉनिटरिंग को पहले डिसेबल नहीं करेंगे तो अलर्ट्स जनरेट होने लग जाएंगे और वो दूसरी टीम को ही काम पे लग जाएगी. एंड मे बी दे विल कम एंड सी के सर्वर अप है, उसको अब की चलते काम में वो उसको ऑन भी कर दे. रिमोट ले रखा है आपने, वो कंसोल से उसको ऑन कर सकते हैं. राइट, सो टू अवॉइड दैट बहुत सारी टीम्स इसमें मिक्स होती है एंड दे नो, हर एक के पास अपना अपना एक टास्क होता है. एप्लीकेशन टीम होगी कि यार इसको हम इस पोर्ट को ओपन करने वाले हैं, मे बी वी विल रीबूट, हमको एक 10 मिनट का 1 घंटे का टाइम लगेगा, आप अपना डेटा वगैरह सेव करना बंद कर दो. सो पीपल विल स्टॉप यूजिंग दैट सर्वर. होने के बाद आपको ईमेल करना होगा. तो डायरेक्टली ऐसा कुछ होता ही नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि चुपचाप एक टिकट आएगा आपको एक SMS की तरह और आपने काम करके बंद कर दिया. उस वे में काम बिल्कुल नहीं होता है. यस यस, डेफिनेटली प्रोटोकॉल्स टेक्निकल से ज्यादा जो है प्रोटोकॉल्स और प्रोसेस जो है इंटरव्यू में उस पर भी बहुत फोकस किया जाता है. लाइक अवनीश सेज दैट ही इज वर्किंग ऑन सिमिलर एनवायरनमेंट. उसी तरह से होगा. किसी भी तरह का है ना, पूरा एक चेंज आता है
4-5 लोग उस कॉल पे होते हैं, सर्वर ओनर होता है, एप्लीकेशन ओनर होता है, नेटवर्किंग टीम से होगा, स्टोरेज से होगा, बैकअप से होगा, हर एक से होगा। बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग, बैकअप टीम से कॉन्फर्मेशन लोगे आप कि यार मैं इसमें चेंजेस करने जा रहा हूँ, should I do that, have you taken the fresh backup है ready, unless he says yes and he closes his task, आपका टास्क बनेगा ही नहीं। बैकअप वाला पहले अपना टास्क क्लोज करेगा, स्टेटिंग कि मेरे पास एक इसका फ्रेश और एकदम प्रॉपर बैकअप आ चुका है, सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग वी कैन रीस्टोर फ्रॉम दैट बैकअप। वो हो जाने के बाद नेटवर्किंग टीम के पास या मॉनिटरिंग टीम के पास टास्क जाएगा कि दिस टास्क इज अबाउट टू स्टार्ट, कुड यू प्लीज स्टॉप मॉनिटरिंग, ताकि अलर्ट जनरेट होना बंद हो जाए। वो होने के बाद आप अपना काम शुरू करोगे। तो इतना लंबा चौड़ा उसमें प्रोसेस होता है, बट विल डिस्कस दैट, वो सब जब हम ये करेंगे। यस, जैसे चेंज एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसका अप्रूवल होता है, और ऐसे सडनली कुछ भी नहीं होता इसमें। सो डोंट वरी, ये सब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वंस वी आर क्लियर विद आवर टेक्निकल क्वेश्चंस एंड टेक्निकल डिटेल्स, जार्गन्स, और इन सब के साथ हम क्लियर हो जाते हैं ना, तब हम प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। एंड दैट टाइम विल हैव टू छोटे छोटे चंक में हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज हर कोई अलग अलग ये बताता होगा। सो नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। होपफुली ये कुछ हुआ हो अब तक या नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी। Right guys, so it is still not working. Let's see, I'll try to reboot the server once and see if that works. See, ये बोलने के लिए 2-3 मिनट का काम है, बट ये सारी चीजें हमेशा चेंज में होती है, नॉट इन प्रैक्टिस। प्रोडक्शन सर्वर में तो इससे ज्यादा होती है, हमेशा होगा ये सब आपके साथ, कि आपको शायद वो रूल को फिर से निकालना पड़े, ऐड करना पड़े। By the way, what did I do guys? Let me explain it to you. I hope you understand। नहीं है तो हम इसको प्रैक्टिकल को फिर से पूरा करके देखेंगे। What did I try to do here? कि मैंने पोर्ट 443 को ओपन रखा है। इससे क्या होगा, आपके जो नॉर्मल वेबसाइट है ना, वो नहीं चलेगी, नॉर्मल वेबसाइट नहीं चलेगी, HTTPS वाली वेबसाइट जो है वो चलेगी। That's all it meant। बट यहाँ पर HTTPS वाली वेबसाइट्स भी नहीं चल रही है। So let me try editing this one, and this time I'm saying any. So this is how you can edit a rule also। मतलब यहाँ पर अगर हमको नया बनाना नहीं सीखना होता, we could have simply come here, इस deny को allow कर देते, और उससे easier था उसको delete कर देते, because allow internet already यहाँ पर है। Are you guys getting it? कुछ ज्यादा confusion हो रहा है? No, it's clear, sir. I mean, Yes guys, what Yeah. about others? Avnish bhai has some experience with infrastructure, so could be easier for him. Akib bhai, I hope it's clear for you. Yeah, understood. Yeah. Irfan, Jafar bhai, Shrishti, Yogesh. हाँ भाई क्लियर Clear, क्लियर है भाई। clear. Okay, I have changed the protocol. Now I have allowed all internet traffic. Let's see if it works. So it is working guys। Now do you see कि कितना जल्दी impact कर रहा है? so And this time it worked very quickly, sir. Like हाँ, I'm not sure, blocking. वो चेक करना पड़ेगा कि हमने 443 में इसको कुछ और ये करना चाहिए Hmm. था। जितना ज्यादा हम इसको डिटेल में ये करते रहेंगे डेफिनेटली, बट इट हैपेंस एंड वी विल डू दैट प्रैक्टिकल आल्सो, कि जहां पर हम 443 को अलाउ करेंगे और HTTP को ब्लॉक करेंगे। विल डू दैट प्रैक्टिकल आल्सो। एक बार हम उसको भी करके देखेंगे, मे बी नॉट टुडे, बट NSG पे भी हम काफी काम करने वाले हैं, सो विल डू दैट प्रैक्टिकल एज वेल। ठीक है, Sure, sure. तो यहाँ पर
Let me try deleting this one. But is it clear guys कि किस तरह से आपका ये हो रहा है यहाँ पर? Let me see. If I delete this one, will internet work now? I'm deleting this priority 150 wala. Will internet work now on that server? No. No, right? Now No, I'm trying no. to add this or edit this, and I'll say allow. Just small change I'm making here is let's see if this works. Did you guys understand what did I do here? First, we had blocked everything. Right handy. Sorry, last time someone gave me a suggestion that you guys are not able to see my mouth cursor. So I think वही हो रहा है. I'll try to see if I can find another कोई अच्छा सा cursor. I tried few, but वो distraction ज़्यादा बना रहे थे, काम से ज़्यादा distract हो रहे थे. So I'll try to do that. So first, what did we do? यहाँ पर by default एक internet allow था. हमने एक deny कर दिया. उसके ऊपर हमने एक और छोटा नंबर से allow कर दिया, जिसपे हमने सिर्फ 443 allow करने की ट्राई की थी. ठीक है, बट नाउ व्हाट डिड वी डू? अलाउ को हमने वैसे ही रखा और बस हमने 80 को डिनाई कर रहे हैं. सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ. और कई बार टाइम लग जाता है, कई बार ऐसा होता है कि वो रूल अप्लाई नहीं हुआ और हम सोचते हैं कि रूल हमसे गलत बन गया, क्या हो रहा है पता नहीं. सो नाउ इट इज स्टिल अलाउइंग टू यूज 80 वाला ट्रैफिक भी. So now it says that it should block port 80. ठीक है, port 80 should be blocked. Other than port 80 सब इंटरनेट ट्रैफिक चलना चाहिए. So let's go to that machine again and check. Guys, are you guys getting it? किसी को कुछ confusion हो रहा है? I'm going very slow today because I do not want you to miss on this. It is redirecting to HTTPS. HTTPS तो चलना ही है. I'm looking for some site जो without HTTPS के हम लोगों को मिल जाए. Let me see. But we'll consider this as working. Yes, we can check my website, but वो server वैसे ही down है, तो हमको वैसे ही पता नहीं चलेगा if that Tsoft वाली चल रही है या नहीं चल रही है website. Yes, but that doesn't have HTTPS, so that would have been a good example. But वो server down है. So it takes me to HTTPS. I'm trying to access HTTP wala site and I want to see if it is blocking. It is automatically redirecting to HTTPS.
वो इंटरनेट के कहीं साइट में होगा शायद जो डायरेक्टली सिक्योर साइट पे ले जा रहा है. I'll try to see if I can find any website which doesn't have a secure site at all. See, it again takes to HTTPS. HTTPS. See, all of them, they almost have HTTPS. HTTPS क्या होता है? बस सिक्योर साइट होती है. तो हम लोगों ने वहां पर let's see ये ठीक है. I think I'll have to, let's see. But it is a park domain, so we don't know whether we are blocking it or या वहीं से block हो रहा है. But that is fine. I hope. Okay, I'll try to do one thing. I'll try to open that on my local machine also. Okay, guys. So this is how it looks, guys. See, I'm using this website. So it redirects me to here. It looks like this here और यहाँ पर वो block कर रहा है. But I'm still unsure कि वो proper block कर रहा है या नहीं कर रहा है. So we'll have to take कोई वैसा site लेना पड़ेगा जिसको हम thoroughly check कर सकते हैं. But that is fine. अगर वो आज नहीं भी होता है, we can do that later. उसको थोड़ा refresh वगैरह करके कुछ ports वगैरह अच्छे से check करके. But I hope you guys got the idea behind it. कि आप लोगों को अगर कुछ ऐसा आता है, so how will you work, किस तरह से आप उसके ऊपर काम करोगे, ports का क्या मतलब होता है. So I hope you got it very clearly. Now let me try this with one more example. Let's see if that works. If not, we'll go to the next topic within NSG. और इस पे हम definitely वापस आने ही वाले हैं कुछ ना कुछ करते हुए. काफी बार इसको practice हम लोगों को करना पड़ेगा. So here, if I go to networking, do you guys see RDP is allowed or is it not allowed? What do you think? If yes, Allowed. okay. So which rule is it? RDP wala? First, Okay, 300. First one. right. So Hold this on. is the RDP rule. So now the source is any. Source port I'm typing 50,000. Destination any. Service RDP. Destination port 3389 and I'm saying allow. I'll explain it to you. First, let's see if this is implementing and if it is working. So what did we do here? We allowed any traffic. We are in inbound now, guys. Understand? I hope all of you are following this, right? We are in inbound rules now. मतलब ये जो machine है, यहाँ पर जो machine है, let's say this machine we are talking about, इसके RDP की हम बात कर रहे हैं, ठीक है?
This machines RDP we're talking about. So we are at inbound. Inbound में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इसका जो 3389 पोर्ट है इसको एक्सेस दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। That is fine. This is inbound port 3389 जो इसका inbound port है। Destination, इस केस में destination कौन सा है? Inbound वाले में destination कौन सा होगा गाइस, जहां से ट्रैफिक आ रही है वो, या जिस पे ट्रैफिक आ रही है वो? Let's say, let me create a new diagram for you. We have hardly 8 minutes, but still we'll try to finish. This is my Azure machine. This is my laptop. I'm trying to take a remote from here to here. ठीक है, अब इसमें इनबाउंड कौन सा है और आउटबाउंड कौन सा है? Azure पे ये इनबाउंड ट्रैफिक है या आउटबाउंड है? On Azure's machine, is it an inbound traffic or outbound traffic? Outbound. This is my Azure VM. This is my laptop. So I'll use this RDP tool, RDC जो tool है, RDP protocol use करते हुए. So on Outlook, on Azure VM, is it inbound or outbound? Inbound. Inbound. Yes. So outbound was it the correct answer, right? क्यों इसमें inbound traffic आ रहा है? तो अब मैं इस रूल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रूल क्या बना रहा हूँ? Source any. So what does it mean now? इस केस में source क्या हुआ? इस केस में source कौन सा हुआ? Laptop. RDP. Laptop, right? So RDP, this is yeah, my laptop, yeah. source. So I'm not sticking to any specific laptop. I'm saying source any. कहीं से भी कोई भी laptop आ जाए, I don't mind. Source any. Source port. Source port की बात कर रहे हैं, ठीक है? 50,000. कहाँ के पोर्ट की बात कर रहे हैं now? Is it Azure VM की या यहाँ पर? कौन से पोर्ट की बात कर रहे हैं? Source क्या है इसमें guys? RDP source. RDP वाला Laptop. machine. So this is the source. So this port we are talking about. इस machine का port. 50,000 I'm saying, ठीक है? 50,000 होना चाहिए. So what am I saying कि source कोई भी हो, but उसका port, जिस port से request आ रही है, that should be 50,000. उसके आगे what does it say? 50,000. Destination any. Any से मतलब क्या हुआ, क्या क्या कवर होगा? ये सब, ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जिस पे भी लग रहा है वो सब कवर हो जाएगा. अगर किसी सबनेट पे लग रहा है तो पूरा सबनेट, कहीं लग रहा है तो पूरा का पूरा वो मशीन. Then which service? RDP. Destination port. Destination port का क्या मतलब हुआ? Which is the destination in this case? Azure. Sure. Azure. So यहाँ का पोर्ट होना चाहिए 3389. It's okay if you do not get it. हम इसको कल फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे. Now it should be allow. Priority सबसे कम रख दी. I'm saving it. I think it's already saved, right? Right, 50,000. ये, it's done. Now I'm trying to take remote. Which tool am I using now? कौन सा tool use करूँगा? RDC. RDP, right? So the moment I use this tool, by default कौन सा port use हो रहा है? 338. 338, correct. But the moment you use browser, या तो 80 या 443 अपने आप use होता है. ठीक है? By default you use, the moment you use this one, इसमें 3389 port use हो रहा है. So source पे भी 3389 और destination पे तो वैसे ही 3389 हमने लगा रखा है. So let's say if this works. Should this work, guys? Should this work in this condition? जो आप देख रहे हो, should this work? Should I be able to take remote? No. I think no, because we have mentioned as 5,000. 5,000. So now let's try to take remote with a port 50,000. 5,000, I think 50,000 sorry. था. Yeah, So how to do that? यहाँ पर बस colon ये करना है and then you type 50,000. Now you're using port as 50,000. 50,000 port के through जा रहे हो आप.
Now let's say if it works. See, it is still not working. So why I use 50,000? ऐसे ही practice के लिए. You could have used anything. ऐसे कभी होता नहीं. I'm just trying to show you कि ये मैं बताऊंगा बाद में कि ये दो पोर्ट्स कब हम यूज करते हैं. जब आप लोगों को ट्रैफिक पोर्ट एक बहुत इजी चीज है किसी भी हैकर के लिए टू डू दिस टू अटैक योर एनवायरनमेंट. एंड आरडीपी है तो हर एक को पता है कि आरडीपी 3389 ही होगा. सो इफ यू वांट टू गिव इट टू लिमिटेड पीपल विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन देन यू कैन गिव सम इस तरह का कुछ पोर्ट वगैरह आप दे सकते हो कि किसी को पता ही नहीं होगा. दे विल कीप ट्राइंग आरडीपी ऑन 3389 लेकिन आपका आरडीपी तो कहां पर है? पोर्ट 50 पे है, राइट? सो लेट्स वेट. एक 2 मिनट वेट करते हैं. 2 minutes है. Let's restart the machine quickly and we'll try to see it then. आज नहीं काम कर रहा है, that is fine. इसके हम प्रैक्टिकल्स करते रहने वाले हैं. वो 443 वाला भी देखेंगे और हम इसको फिर से देखेंगे. बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि वहां पर डेस्टिनेशन का क्या मतलब है, सोर्स का क्या मतलब है. ये सब आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए. सो इसका ये 50,000 यानी यूडीपी टीसीपी ये प्रोटोकॉल चेंज हो गया ना? नहीं, प्रोटोकॉल तो यही हुआ, पोर्ट चेंज हुआ सिर्फ. अच्छा, तो यहाँ उसको पर कुछ if you see, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है. नहीं, नॉट नेसेसरी. ओके. इसका प्रोटोकॉल जो है टीसीपी है. प्रोटोकॉल इसका वही है, बस हमने अच्छा, सोर्स ओके. का पोर्ट चेंज कर दिया. अगर ये कोई वेबसाइट होती है, लेट्स से कोई वेबसाइट होती है और गूगल बोल रहा है कि मुझको आप सिर्फ 50,000 पोर्ट पे ही यूज कर सकते हो, तो यू सिंपली हैव टू कम हियर और यहाँ पर 50,000 टाइप करना है एंड यू हैव टू हिट एंटर. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. अब वो चलेगा भी नहीं क्योंकि गूगल का कोई 50,000 पे उस तरह का वेबसाइट उसने ओपन कर ही नहीं रखा है. ठीक है, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. विल सी दैट. मैं अपना सर्वर जब ऑन करूंगा मे बी कल वाले सेशन या परसों में, तो हम एक वेबसाइट को भी 50,000 के पोर्ट से एक्सेस करके देखेंगे. So this is being restarted, guys. We have 1 minute. If you have any questions, please let me know. Is it restarted already? 20 73 91 नहीं, IP वही है अब तक. So I think ये restart नहीं होगा अब. We'll see it. Okay, it has been restarted. Let's see. Hopefully it works. नहीं भी काम करता है तो that's okay. We are going to check this tomorrow, day after tomorrow, कभी भी हो हम लोग इसको वो पूरा एक प्रैक्टिकल सक्सेसफुली जब तक नहीं होता है उसकी ट्रबल शूटिंग वगैरह ये सब हम करके देखेंगे कि why is it not working. 50,000 इसके अलावा कहाँ पर ब्लॉक है? मे बी 50,000 इसके फायरवॉल पे तो ब्लॉक नहीं है. We'll see that also. ठीक है guys, so that's enough for today. I'll keep this machine for 5-10 minutes. I'll see अगर वो work कर रहा है तो I'll share a screenshot with you guys. Then later on I'll delete it. See you guys tomorrow. Please go ahead and look at NSG rules वगैरह. आप बनाओ या नहीं बनाओ, at least go and check this. ठीक है. Meanwhile I'll work on this and I'll let you know इसका क्या status होता है. If you have any questions, please feel free to put it in a WhatsApp group. Bye guys. Yeah, thank you. Bye. Thank you.